حالات عذرا کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں, ہم ایشوز سامنے لاتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سماج میں ہو رہی ہیں جن سے شاید ہم تھوڑا کنارہ کرتے ہیں یا اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سماج میں وہ چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ سماج کو اندر سے کھوکھلا بھی کر رہی ہیں اور مشکل بھی پیدا کر رہی ہیں. آج کا مدعا کچھ ایسا ہی ہے. بات منشیات کی ہوگی آج کے پروگرام میں. اگر آپ دنیا کی بات کریں, یونو کہتا ہے کہ 1990 میں 3 ملین دنیا میں ڈرگ سبسٹنس ابیوزر ہیں, اور 2010 میں 230 ملین ہیں. ہندوستان کی بات کریں تو پچھلے 10 سال میں کہا جاتا ہے کہ 30% اضافہ ہو گیا ہے. کشمیر آ جائیں تو یہاں کہتے ہیں کہ 2019 کے عدد و شمار میں کہتے ہیں کہ 3 سالوں میں 1000% اضافہ ہوا ہے منشیات کے استعمال میں, اور پیشنٹس بڑھ گئے. ایک سینٹر کی بات کرتے ہیں ہسپتالوں کے تو وہاں 600 پیشنٹ پچھلے سال آتے ہیں, اور وہاں کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سب سے چھوٹا پیشنٹ جو ہے اس کی عمر 8 سال ہے. تو صورتحال گمبھیر ہے, تشویشناک ہے. اس کے بارے میں سوچنا ہے, اس کے بارے میں کام کرنا ہے. اور اسی مدعے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر محمد مظفر خان جی صاحب ہیں, خان صاحب موجود ہیں. یہ سائیکولوجیکل کنسلٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ یہ ممبر ہیں, بانی ممبر ہیں, جو پولیس نے سینٹر بنایا تھا ریہیبلیٹیشن کا اس کے. اور یہ میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں, ان کے بائیں جانب بیٹھے ہیں محمد الطاف خان صاحب, ایڈوکیٹ ہیں اور یوتھ ٹرینر بھی ہیں. اور یہ جو بچے منشیات کے اس میں پھنس جاتے ہیں یا بڑے لوگ بھی پھنس جاتے ہیں اس چنگل میں, ان کو باہر نکالنے کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. آج یہ 2 ماہرین ہیں, ان سے بات کریں گے. آپ دونوں کا خیر مقدم ہے دوردرشن کے اسٹوڈیوز میں. شکریہ. مظفر صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. میں نے کہا کہ صورتحال کچھ ایسی ہے ویسی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بالکل گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں, صورتحال کیسی ہے؟ آپ پورے سال کی بتا رہے ہیں یا کس آپ ٹائم پیریڈ مینشن کیجیے؟ دیکھیں نا اس وقت کیا کنڈیشن ہے, ہم پچھلے 5 سال میں کہاں پہنچے ہیں. اوکے پچھلے 5 سال میں میں آپ کو ایسے بتا دوں گا. ہم لوگوں کا جو ڈی ایڈکشن سینٹر تھا پولیس کنٹرول روم کے اندر تھا, جو 10 بیڈڈ ہاسپٹل تھا. اچھا. حالات اس طرح کا جو پیشنٹس کا فلو رہا, جو ویٹنگ پیریڈ بڑھتا گیا, تو جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے بیڈ کیپیسٹی 25 کر دی. اچھا. اور 25 بیڈ کیپیسٹی پر پرسنلی میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب مجھے پیشنٹ ڈھونڈنے پڑیں گے, بٹ بلیو می 25 بیڈ کیپیسٹی کرنے کے بعد بھی ویٹنگ لسٹ کم نہیں ہوا. اچھا. اس کے بعد جو ہمارا یہ سینٹر تھا پولیس کنٹرول روم کے اندر, اس کو پھر شفٹ کیا گیا لاسٹ اگست 2019 میں عیدگاہ میں, جہاں پر اس کے ایک اپنا کیمپس ہے, ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, بہت ہی اچھا انفراسٹرکچر ہے, اور بیڈ کیپیسٹی کو 50 کر دیا. اور ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو نمبر آف پیشنٹس سیکنگ ٹریٹمنٹ جو آ رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, دیکھیں اس میں کئی ساری لیولس ہیں. بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ سیک نہیں کر رہے. جی. ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس نمبر کی جو ٹریٹمنٹ سیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے پاس کہ بھائی ہمیں ہیلپ کرو, یا ان کی فیملیز ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہیلپ سیک کر رہے ہیں. اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو اضافہ ہوا ہے وہ کافی زیادہ ہوا. اگر میں اپنے ہاسپٹل کی بات کروں جو ہم عیدگاہ میں کر رہے ہیں, اٹ از آلموسٹ 2300 پیشنٹس who have reported in the year 2019. 2300. یہ دیکھیں نا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہ بہت کم پرسنٹیج ہوگی ایکچوئل سے جو ٹریٹمنٹ کے لیے. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم صرف 2020 کی بات کریں, جو ابھی یہ 6 مہینے ہو گئے, تو جسٹ ناؤ میں دیکھ رہا تھا اراؤنڈ 1100-1200 کے آس پاس پیشنٹس آئے ہیں آدھے سال 5 مہینے میں جو ٹریٹمنٹ کے لیے وہ آپ کو سیک کر رہے ہیں, جو ہیلپ ڈھونڈ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک سائڈ سے تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بری بات ہے, نمبر بڑھ رہا ہے. دوسری سائڈ سے تھوڑا سا ایک پازیٹیو چیز بھی ہے کہ رپورٹ ہو رہی ہے. یس اس میں تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں اگر ہم 2008 کی بات کریں, جب ڈرگ ڈی ایڈکشن کی بات ہونے لگی تو ایک ڈینائل تھا, سوسائٹی نہیں مان رہی تھی کہ ہمارے یہاں پر ڈرگ ایڈکشن ہے. جی صحیح بات. بٹ تھینک گاڈ آج کے ڈیٹ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 10 سال میں دیر از اے موومنٹ فرام ڈینائل ٹو ایکسیپٹینس. اب لوگ مان رہے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن ہے. ایز اے سوسائٹی ہم لوگ مان رہے ہیں, گورنمنٹ مان رہی ہے, پولیٹیشینز مان رہے ہیں, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں دے آر ایگرینگ اٹ ایز اے پرابلم. سو دیٹس اے ریزن کہ اس میں ایک ٹریٹمنٹ سیک کے لیے پاپولیشن بڑھ رہا ہے.
सेकंड काफ़ी कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहा है, काफ़ी सारे लोग जब चर्चा इसमें करेंगे। शुरू हो गई तो जो एक पेरेंट है, जो एक बेसिक स्टेक होल्डर है, जो एक टीचर है, उन लोगों को भी उनकी एक सेंसिटिविटी बढ़ गई इस प्रॉब्लम को लेकर और उन लोगों ने भी उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और वो नंबर बढ़ने लगा। देखिए जैसे आपने कहा कि थोड़ा नंबर बढ़ने लगा कि लोग रिपोर्ट करने लगे, पहले बिल्कुल सही है, जब बात होती थी इसकी लोग कहते नहीं हमारी सोसाइटी में नहीं है, हम बदनाम हो रहे हैं, झूठ है, लेकिन इसमें स्टिग्मा अटैच नहीं है, कोई बदनामी की बात नहीं है, अगर बच्चा या कोई सुधर जाए तो बहुत बेहतर है। खान साहब, अल्ताफ खान साहब, कि क्या वजूहात तो इसकी होंगी कि बच्चा उस स्टेज पे आ जाता है या कोई भी आदमी इस स्टेज पे आ जाता है? देखिए, मंशियात की जो इस्तेमाल बहुत हद तक बढ़ गया है खासकर कश्मीर में, इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक वजह तो ये है कि सियासी उथल पुथल, काफ़ी टाइम से हम जिन हालात का शिकार हैं उसमें ये एक लाजमी अमर है कि ड्रग एब्यूज़ बढ़ेगा, और ये नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ प्रेशर है। जो है बहुत हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन हालात को बढ़ाने में मदद करता है। एक मिसाल मैं दूंगा, जब चाइना अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था तो चाइना की 30% पॉपुलेशन ओपियम का बिल्कुल इस्तेमाल करती थी, अंग्रेजों ने हो चुकी खिलाया थी। था उनको। बिल्कुल, और वो ओपियम इंडिया से जाता था। तो इसी तरह दूसरी जो वजह है, अब मंशियात दस्तयाब है। कश्मीर उस नक्शे पे उभर के आया है जहाँ पे मंशियात न सिर्फ आती हैं बल्कि यहाँ से दूसरी जगहों को भी सप्लाई होती है। तो ऐसा क्यों कर हो रहा है, क्या वजूहात है, ये हम सब बहुत सारे लोग इसमें जानते हैं। और तीसरी वजह जो ये है कि हमारे जवानों के पास या लोगों के पास ये सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, और जब कुछ करने को नहीं है, डिप्रेशन है, हालात ख़राब है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस तरफ आ जाए। आप जैसे कह रहे हैं ना, जैसे एक चीज़ है कि वो कमरे में बंद है या बाहर जा नहीं सकता या कुछ ऐसे हालात हैं, फिर बेरोजगारी है उसके लिए, फिर मुस्तकबिल का खतरा है उसका, मेरे मुस्तकबिल में क्या है पता नहीं है, पता नहीं मैं क्या करूंगा लाइफ में। और बिल्कुल, और जहाँ तक जैसे हमने अभी तक एज अ सोसाइटी हमने जो समझा है कि ये खराब है, इसने जी ड्रग्स का इस्तेमाल किया, तो हम लानत मनावनत करते हैं। जो सही रेस्पॉन्स नहीं है उससे भी क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ये शोध, ये बदमाश, जो हम ये चीज़, इन चीज़ों ने और इसको बढ़ावा दिया, वो कुछ नहीं कर पाता। तो ये ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक्सेप्ट करें और इसको एज अ बीमारी ट्रीट करें कि ठीक है, कोई भी, किसी को भी लत लग सकती है, ऐसा नहीं कि इससे इम्यून है कोई। नहीं, सही बात है, जैसे आप कहते हैं कि इससे किसी को भी लग सकती है, और ये नहीं है कि जो बैकग्राउंड उसका है हमें पता नहीं है, हम उसकी लानत मलामत नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि ये मज़े के लिए कर रहा है, क्योंकि हर आदमी वो नहीं करेगा। डॉक्टर मुजफ्फर, आपके पास आते हैं वापस, आपने कहा कि ट्रीटमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, बेहतर सिचुएशन हो रही है, लेकिन ऐसा भी कहीं आपको महसूस होता है कि कुछ वालिदैन, कुछ टीचर साथ दे रहे हैं और कुछ बच्चों को अबैंडन कर रहे हैं, कहते हैं हम छोड़ दो, हमको हो गया तो हो गया, हम क्या करें? तो जैसे मैं कहा कि पहले एज अ सोसाइटी वी वर इन डिनाइल, लेकिन अब जब बच्चे को एवेलुएट करते हैं और पेरेंट्स से जब बात करते हैं जी, या किसी स्कूल में हम लोग जाके बात करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारा जो डे एडिक्शन में हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्रिवेंट दोज हु आर वल्नरेबल। वन इज, आपके दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक तो है ट्रीट दोज हु आर अफेक्टेड एंड हु वांट टू बी ट्रीटेड, सेकंड इज प्रिवेंट दोज हु आर वल्नरेबल, जो इस तरफ जा सकते हैं, जो इस तरफ जा सकते हैं। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि parent as a unit, अभी right now parent as a unit, majority of them they are in the denial. As a parent they are denial. जब उनसे drug addiction की बात कर रहे हैं, they will say they will count 10 children, उनका बच्चा कर रहा है, उनका कर रहा है, उनका कर रहा है, लेकिन मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। करा, लेकिन मेरा बच्चा नहीं करा। अच्छा, ये वही किस्सा है ना कि उसका बच्चा डॉक्टरी कर रहा है, तुम भी करो। Yes. तो अब ये हमारे कंपैरिजन के मामले चल रहे हैं। Same is true with the schools. Maybe there might be a lot of reasons. Stigma can be one reason,
When we talk to the school authority that we want to conduct a program here, prevention पर हम बात करेंगे, हम awareness पर बात करेंगे, हम बच्चों से इनकी vulnerabilities को लेकर बात करेंगे. The response from the school authorities is हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है. वो देखिए ना, एक बात जो आपने की उससे एक चीज सामने आती है कि उनको लगता है अगर हमारे स्कूल में हुआ दुनिया में मैसेज जाएगा Yes. कि इनके स्कूल में पेशेंट हैं इसलिए हो रहा है. Yes, yes, yes. खान साहब क्या कहते हैं, आपकी जानिब आते हैं. इसमें एक हमारा मैकेनिज्म है जो इसकी रोकथाम कर सकता है, इसकी पेडलिंग रोक सकता है, और उसके लिए कानून भी हैं, और आप अदालत से जुड़े हुए हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी हैं, उनका क्या रोल है? देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या जुडिशरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन बेसिक फ्लॉ जो मुझे लगता है, जैसे पॉजेसिंग नार्कोटिक ड्रग्स, ये एक ऑफेंस है, लेकिन जब आप किसी बच्चे को पकड़ते हो, उसने इस्तेमाल किया है, हो सकता है उसके पोजीशन से आप निकले, तो देन हम उसको एक ट्रीट एज ए क्रिमिनल ट्रीट करते हैं, जो उसको चेन जो है, हाँ, आगे लाने से ज्यादा उसको पीछे धकेल देता है. या तो उसको जेल की नजर हो जाना पड़ता है या साइकेट्रिक हॉस्पिटल की नजर हो जाना पड़ता है. और तीसरा है कि हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर तो अभी श्रीनगर में एक है, लेकिन बाकी जो हालांकि गवर्नमेंट ने बनाए हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है. दूसरी बात है, अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर है भी तो अब लोग वहां जाएंगे कैसे? कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है. अच्छा, आप कैसे किसी की बच्चे को अगर आप सड़क पे देखोगे, आप उसको कहाँ ले जाओगे? आप पुलिस के पास ले जाओगे. अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी फैमिलीज ने अबैंडन किया है कि नहीं, अब ये उस हद तक चला गया है कि इसने चोरी की है, इसने कुछ किया है, तो अब इसका क्या करेंगे? तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि फिर उसको कहाँ ले जाएं. वही जो डॉक्टर मुजफ्फर ने बात कही कि अभी डिनायल मोड में है. फैमिली सोसाइटी एज होल मान रही है, लेकिन जो यूनिट है छोटा फैमिली, वो डिनायल मोड में है. हालांकि एक चीज जो सही है कश्मीर के ज़मन में कि यहाँ ड्रग अब्यूज और क्रिमिनल माइंडसेट उतना ज्यादा इकट्ठे नहीं हुआ है. वो हमारी एक खूबसूरती है यहाँ की. वक्त के साथ हो सकता है, ये हो सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप देखिए ना, क्योंकि आपको ड्रग्स के लिए पैसा चाहिए, तो वो जो बेचता है आपको, वो आपसे कुछ भी करवा सकता है. बिल्कुल, लेकिन हमें दो चीजें अलग करनी है. एक, जो कारोबार के लिए ये चीजें बेचता है, लोगों तक पहुंचाता है, चेन ब्रेक करनी है. उसके लिए हमें स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत है और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है. उसमें पुलिस का रोल है. बिल्कुल, उसमें पुलिस. देखें, कोई भी शख्स इम्यून नहीं है. जैसे एक डेमोक्रेसी में एक सिस्टम्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं. जजेस के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, पॉलिटिशियंस के लिए हैं, पुलिस के लिए है. तो जो इंडिया में सबसे बड़ी जो खेप पकड़ी गई थी, जो नोएडा में पिछले साल ड्रग्स की, वो एक बहुत बड़े ऑफिसर के घर से पकड़ी गई थी. तो हमें सब पे ये चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत है. डॉक्टर मुजफ्फर, आप तो ये करते हैं, रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, उस सेंटर में काम करते हैं. कोविड से पहले एंड पोस्ट कोविड रिस्पांस लोगों का और आप लोगों का आप पे क्या असर पड़ा? फाइन, वंडरफुल. इसमें मुझे याद आया कि पोस्ट कोविड से पहले हमने कई प्रोग्राम स्टूडियो में किए, और एक मोमेंट बना हुआ था, एक मोमेंटम जनरेट हुआ था, बिकॉज सब लोगों ने ड्रग एडिक्शन को लेकर बात की. और it was because of that whole momentum, I won't say, it was both NGOs, public as well as government. एक फोकस बना हुआ था, बहुत सारी मीटिंग्स की इस पर, एंड आउट ऑफ दैट होल फोकस एक ड्रग एडिक्शन पॉलिसी भी बनी इस स्टेट में. अच्छा, एंड इनफैक्ट दिस इज द ओनली स्टेट जिसमें उस तरह का डॉक्यूमेंट बना. स्टेट ने उसको पास किया, वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया. और यस, कुछ इनिशिएटिव्स भी हुए, जैसे हमारा SMHS में OPD सर्विसेज शुरू हुआ, इनका इनपेशेंट सर्विसेज शुरू हुआ, बारामूला में सर्विसेज शुरू हुई, मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में सर्विसेज शुरू हुई. अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज कहीं जगह शुरू भी हुई, कहीं जगह प्रपोजल भी था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, सब किसी को नहीं पता था. सही बात. और आया और हम सब लोग इसी में लग गए. वो सारा फोकस खुले हैं कि वो सारा फोकस शिफ्ट हो गया. नाउ कोविड के बाद अब आप देख लीजिए, आपके जनरल हॉस्पिटल्स में भी कई सारे हॉस्पिटल जो कोविड कन्वर्ट हो गए. सेम इज विद द ड्रग एडिक्शन फैसिलिटीज. ड्रग एडिक्शन फैसिलिटीज में भी कई सारी फैसिलिटीज है, जो आइसोलेशन सेंटर्स है, कोविड फैसिलिटीज है. और आपका मार्च में, अप्रैल में कंप्लीट लॉकडाउन था, कंप्लीट मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड थी. तो ये सारे सेंटर्स बैक बर्नर पर चले गए. नाउ वी आर ओपनिंग अप. अच्छा, अब शुरुआत हो रही है.
लेकिन शायद मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी फिर से उस मोमेंटम पर आने के लिए जो मोमेंटम हमारा कोर्स से पहले। अल्ताफ खान साहब इसकी बात करते हैं, आप यूथ ट्रेनर भी हैं, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे बच्चे हैं इनको गाइडेंस काउंसलर की कितनी ज़रूरत है, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, जिसके पास ये अपनी बात कह सके, कर सके, और जो पेशेंटली सुने किसी जजमेंट के बगैर। देखिए बहुत खूब, ये इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। हमने कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम किया था इमाम साहिबान के साथ श्रीनगर में, डॉक्टर साहब ने वो किया था, हम सब उसमें शामिल थे। लेकिन उसमें खुशी हुई कि जितने भी इमाम साहिबान उसमें मौजूद थे वो सब इस पे काम करना चाहते हैं मस्जिदों में, जिसकी ज़रूरत है। यानी वो डिनाइल मोड में हम शायद अभी नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये हमें अंदर से खोखला कर सकती है ये चीज़। दूसरी जो चीज़ मुझे लगता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो मोहब्बत और शफकत की ज़रूरत है, कि अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया है उसको कंडेम न करें, बल्कि मोहब्बत और शफकत से उसके साथ पेश आए और उसको एज बीमारी ट्रीट करके उसकी इलाज में मदद करें। जैसे आपने अल्ताफ खान साहब कहा कि आपने इमाम साहिबान से बात की, तो मस्जिद में जुमा का खुतबा या बाकी चीज़ें हो सकती थी जो अफलाल बंद हैं, जो नहीं हो पाएंगी, लेकिन इनके ज़रिए आप, क्योंकि मज़हब का भी बड़ा रोल है इसमें, बिल्कुल कि लोगों को इससे सही बात बताई जाए तो शायद दूर हो जाएं, इससे ये ऐसी हरकत ना करें, तो वो अब इस मोमेंट में इन हालात में इमाम साहब क्या कर सकते हैं? अभी तो सब कुछ बंद है, बंद है, नहीं कर सकते, और अभी तो ज्यादा प्रेशर है। ये क्या हमारा, जैसे आप सोशल मीडिया देखें, यूट्यूब देखें, बाकी देखें, इस पे तो हम काम कर सकते हैं आजकल। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है काम करने की, और साथ साथ इसमें भी कि भाई इसको कंडेम ना कीजिए, इसको हेल्प करने की ज़रूरत है, जितने भी इसमें गए हैं, और उनको वापस लाने की ज़रूरत है। जी देखिए एक और चीज़ है, एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बीच बीच में डॉक्टर मुजफ्फर ने कहा, आपने भी इसका इशारा दिया कि वालिदैन जो हैं उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे में ऐसा कुछ है, और फिर वो कैसे रिएक्ट करें? देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी वालिदैन की ही है कि वो अपने बच्चों को टाइम दें, और अगर उनको लगता है, एक तो पैसे की फरादानी कि पैसा ज़्यादा बच्चे के पास ना हो, जितनी ज़रूरत उतना हो, और दूसरा वालिदैन को पता मेरा बच्चा कहाँ जाता है, और खुदा न खास्ता हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, और ये बच्चा ही नहीं है, कोई भी कर सकता है, इस तरफ जा सकता है, तो उसमें हमें एक स्कूल में हमें नज़र रखनी है कि खुदा न खास्ता बच्चा ऐसी सोहबत में ना। फिलहाल हम तो स्कूल से फिलहाल बरी ही हैं पिछले एक साल से, लेकिन कभी न कभी तो खुल ही जाएंगे। मगर एक चीज़ है, बच्चा आइसोलेशन में बैठने की आदत हो गई है मोबाइल लेके, तो बिल्कुल पता नहीं अब कमरा बंद के हो क्या रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब से वही पूछूंगा, डॉक्टर साहब बिहेवियरल चेंज क्या होगा इसमें, देखिए जो नोटिस होगा? पहले मैं आपके सवाल को बिल्कुल रिजर्व में रखता हूँ। मैं आपको एक ट्रेंड बताऊंगा कि पिछले 3 साल से हाउ ड्रग सिनेरियो इज चेंजिंग इन कश्मीर। जी पहले हम लोग, अगर आप मुझसे पूछते, मैं कहता कि ज़्यादातर बच्चे चर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं और मेडिसिनल ओपियोइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बढ़ रहा है, चर्च और मेडिसिनल ओपियोइड्स, ये एक पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहा है, ये बैक beginners बर्नर के पर लिए। जा रहा है। नहीं, इसको आप कोई पूछता नहीं। अच्छा नाउ दे आर स्टार्टिंग विद हेरोइन, दे आर स्टार्टिंग विद हेरोइन, और बहुत ही जल्दी वो फास्ट ट्रैक पर वो लोग पहले इनहेल करते हैं, उसके बाद वो लोग इंजेक्ट करते हैं, आईवी यूज़ करते हैं, और बहुत ही एक कम समय में वो लोग अब्यूज से लेकर डिपेंडेंस पर आ जाते हैं। ना जैसे ही वो डिपेंडेंस पर आ जाते हैं, ड्रग एडिक्शन नंबर 1 ये तो एक रात में होता नहीं है, ये इट टेक्स सिग्निफिकेंट टाइम। एक इसमें एक डिस्क्रीट स्टेजेस है जिसमें से इस बच्चे को या इस पर्सन को गुजरना पड़ रहा है, तब जाके वो उस बात पर किसी स्टेज पे अगर अर्ली नोटिस हो गया कुछ बिहेवियरल चेंज, एटीट्यूडल चेंज, मैं तो क्या करें? सो इट टेक्स एक डिस्क्रीट स्टेज है जब वो डिपेंडेंस पर आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पेरेंट, जहां जो मुझे पर्सनली लगा, I would say whole family members, जैसे it is parents, whether it is siblings, or not only family, even the school teachers. और सबसे easiest है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये हुआ तो ये ड्रग है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। ये ड्रग्स है इन जनरल में मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक ग्रॉस चेंज आता है उसके बिहेवियर में, ग्रॉस चेंज आता है उसके एटीट्यूड में, और बिहेवियर और एटीट्यूड आई एम इंक्लूडिंग इमोशंस, आई एम इंक्लूडिंग रिएक्शंस, हिज थॉट प्रोसेस, एंड आई एम इंक्लूडिंग हिज ओवर्ट बिहेवियर्स। जैसे एग्रेशन हो गया, ओवर्ट बिहेवियर में विदाउट रीजन ये बच्चा पहले नहीं कर रहा था गुस्सा, अब ये गुस्सा करने लगा। पहले ये सबके साथ बैठता था, अब ये आइसोलेशन में बैठता है। पहले ये मोबाइल लेता था और पापा को 10 बार पूछता था कि पापा आपने पैसे खर्च किए, अब ये डिमांड पर डिमांड डाले जा रहा है, एंड देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट रीजन कि कहाँ गया, कहाँ गया। एक और चीज है, इससे पहले कि डॉक्टर ये अल्ताफ खान साहब के पास समझाए, एक बात ये भी है कि अगर घर में आपस में इंतशार है, यस, आपस में फ्रिक्शन है, इसका कितना बच्चे पे असर होगा? से मैं आपके सवाल पर, जितने भी हम लोग इन बच्चों को ड्रग एडिक्शन में जो देख रहे हैं, प्रोफेशनली जो आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस 3 तरह के लोग मैं देख रहा हूँ। एक वो बच्चा है जिसको प्रॉब्लम, घर की कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव है, हाईली इंटेलिजेंट है, और वो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर है। उसको एडवेंचर चाहिए, उसको रॉक क्लाइंबिंग चाहिए, उसको स्पोर्ट्स चाहिए, जैसे हमारे एडवोकेट साहब बोल रहे थे कि जो वो हमारे सिस्टम में चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी है, वो बच्चा एवरेज से ज्यादा इंटेलिजेंट है। जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसने वो पढ़ा हुआ होता है, तो वो हर चीज में अच्छा है, वो हर चीज में अच्छा है। वी नीड टू हैव समथिंग स्पेशल फॉर दैट चाइल्ड सो दैट ही फील स्टिमुलेटेड। राइट, जैसे खेल है, बाकी चीजें, स्पोर्ट्स है, बाकी चीजों में बिजी रहना है। देयर इज अ सेकंड ग्रुप, देयर इज अ सेकंड ग्रुप। मेरे ख्याल में वो जो बंद हो गई उससे भी असर हो गया होगा। डेफिनेटली यहाँ सारी एक्टिविटीज बंद हो गई। इट इज नॉट ओनली आज की बात, लॉकडाउन की बात आप देखिए, 30 साल से पिछले 30 साल से हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कितनी हो रही है, और बदकिस्मती से वी आर लिविंग इन दैट पार्ट ऑफ द ग्लोब जहां मौसम की भी मार है। लोग कहते हैं अच्छा है, तो डिफिकल्टीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है रिलेटेड टू स्नो स्कीइंग, लेकिन हम लोगों ने उसको कितना डेवलप किया। सेकंड जो हम दूसरे ग्रुप की बात करेंगे, जो है जो उन लोगों को ये इशू नहीं है, उन लोगों को पर्सनल इश्यूज है, फैमिली इशू, फैमिली में इश्यूज है, झगड़े, ट्रॉमा हुआ, कोई पर्सनल ऐसी एक्सपीरियंस हुई जिसके वो कोप अप नहीं कर पा रहे, बता भी नहीं जैसे सकते। माँ बाप की लड़ाई है, और सिंगल पेरेंट है, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंज चाइल्ड ब्रॉट अप बाय अ सिंगल पेरेंट। और आप देख लीजिए पिछले 30 साल में हमारे कितने पेरेंट्स हैं जो सिंगल है। सही बात है। ये आपके पास आखिर पे फिर से आएंगे, पहले हम जाएंगे एजाज खान साहब की, अल्ताफ खान साहब के पास। खान साहब, बहुत बच्चों से आप मिले होंगे जिन्हें जो एडिक्ट हो गए और जिन्हें छोड़ दिया, दोनों रिएक्शन क्या थे जब हो गए और फिर जब ठीक होने लगे? बहुत सारे बच्चे हमने देखे जिन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था, वो वापस नहीं आए, हालांकि फिर भी डर लगा रहता है कि शायद वो फिर से इसकी तरफ आ जाएं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक तो रिलीजन का बहुत बड़ा असर था उसमें उनके वापस, और दूसरा फैमिली सपोर्ट जो उनको मिला, वो बहुत, जितने भी हमने देखे उनके वापस ना जाने में इन दो चीज़ों का बड़ा हाथ है। अनकंडीशनल फैमिली सपोर्ट हो तो बच्चा रिहैबिलिटेट होगा। बिल्कुल। और तीसरी जो बात, जैसे पूरी दुनिया में कितने लोग साल भर में मरते हैं इस चीज़ से, और वादी कश्मीर में भी पिछले साल में भी और इस साल में भी रिपोर्ट हुई डेथ्स की इससे। तो ये चीज़ समझ के कि मैं अब नहीं पीना चाहता, तो एट दैट स्टेज उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर जिंदगी बेहतर हो जाती है। जैसे इससे बच्चा निकल सकता है, ये नहीं कि चला गया बाहर नहीं आ सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमारा जैसे डॉक्टर मुजफ्फर साहब, ये है कि पॉजिटिविटी ये है कि इससे आप निकल सकते हैं और आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा? कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक लाइन ऐड करूंगा जो सिल्वर लाइनिंग हमारी है। नंबर 1 कि जो हमारे बच्चे अभी भी इसमें गए हैं, ये हमारे साथ एक रीसेंट फिनोमेना है, पिछले 5-6 साल का, 10 साल का फिनोमेना है, और उन बच्चों में अभी क्रिमिनलिटी नहीं है, क्रिमिनल बिहेवियर्स नहीं है। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं बच्चों से बात करूँ, उनके अंदर अभी डिस्क्रिपेंसी ऑफ वैल्यूज है। उनको एहसास गुनाह है, इनको एहसास है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ।
जब तक उनको ये एहसास मुझे मिल रहा है तब तक मुझे एक होप मिल रहा है ये ठीक हो इस जाएगा. वक्त सपोर्ट चाहिए मगर Yes. इनको. सेकंड जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में है दैट्स अनदर गुड थिंग कि यहाँ पर अभी भी फैमिली सपोर्ट बहुत इंटैक्ट है. अच्छा. बच्चे जो भी इसमें जाते हैं आउट ऑफ वो कंपल्शन जो भी इसमें वो बिहेव करते हैं घर वालों के साथ अच्छी तरह से नहीं बिहेव करते हैं और उनकी एक मजबूरी बनी रहती है. उनके विड्रॉल्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल. लेकिन उसके बाद जब हम एक बार उसको ठीक करते हैं रिहेबिलिटेट करते हैं फैमिलीज टेक एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर दे बिकम समटाइम्स ओवर प्रोटेक्टिव. मैं आपको अपनी बात बताऊं हम लोग हर ट्यूसडे को एक ग्रुप सेशन करते हैं रिकवर्ड एडिक्ट्स का और रिकवरिंग एडिक्ट्स का और उसमें मैं देख रहा हूँ इसके बाद काउंसलिंग जारी रखा. हाँ फैमिलीज में देख रहा हूँ कि फैमिलीज डेडिकेटेडली उस बच्चे को लेके आ जाते हैं. और घर वालों का भी ये रोल है कि जैसे घर में उसके साथ हमारा बिहेवियर है थोड़ा हमें भी उसमें तब्दीली लानी होगी. यस यस बिल्कुल ताकि ये वापस रिलैप्स ना हो से जाए. उसमें एक इम्पॉर्टेंट है फैमिली काउंसलिंग का एक रोल बनता है फैमिली थेरेपी का रोल बनता है क्योंकि जब जैसे ये बच्चा इंस्टीट्यूशन से ये ठीक हो गया ये वापस फैमिली में जाएगा उस फैमिली को एक साथ चलाना और उस फैमिली के अंदर एक्सेप्टेंस आना और उस फैमिली के अंदर क्रिटिकल कमेंट्स ना हो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली को काउंसलिंग करना है और फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जैसे जब वो फैमिली में वापस आता है तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए एक नई एंटिटी मान के नहीं एक्सेप्ट किया जाए जैसा था मेंबर फैमिली का वो. खान साहब आपका आखिरी वर्ड. मैं यही खान साहब कि हम सब कोई भी हम में से गिर सकता है लेकिन गिर के कोई भी उठ सकता है. हमें इस नज़रिए से देखना है कि अगर कोई इस तरफ गया है तो बिल्कुल वापस आ सकता है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा वो वापस आ से सिर्फ उसको ये समझने की ज़रूरत है कि इसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है कि जब किसी के साथ भी हो सकता है. ये किसी के साथ भी हो सकता है. बिल्कुल. डॉक्टर मुजफ्फर आपका आखिरी वर्ड ये है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है हाउ टू अप्रोच इट एंड हाउ टू स्प्रेड देम. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैमिलीज को इन्वॉल्व होना है टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है और एटीट्यूड ओपन रखना है पॉजिटिव रखना है कि ये बच्चा ठीक हो सकता है एंड लेट देम कम टू द रिहैबिलिटेशन. बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर खान साहब और हमारे अल्ताफ खान साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए. शुरू में मैंने बात कही थी थोड़ी आपको लगी होगी कि बात ऐसी है कि जिसमें ग्लूमीनेस है मगर हमने जब एंड किया तो ये कहते हैं आप बाहर निकल सकते हैं आप ठीक हो सकते हैं. एक जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनका एक रोल है उनके बगैर ये ड्रग पेडलिंग नहीं हो सकती. उनको इसके बारे में सोचना है और हमको भी इसके बारे में सोचना ये है कि हम इन बच्चों को गले लगाएं और इनको ठीक करने की कोशिश करें इनको धत्कारें नहीं तो सब सुधर सकता है. नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज का हालात हज़रा प्रोग्राम आपने देखा इसके लिए इजाज़त चाहेंगे आपसे. मिलते रहेंगे इस प्रोग्राम में. खुदा हाफिज़.